I hope you are doing good. Myself, Prashant Kumar Srivastava. I am physics teacher. Please like, subscribe, and share my YouTube channel. Okay, thanks. Today's class related about to the lens formula. First of all, I am sharing what is the lens. Lenses are made of transparent material like glass or plastic. Okay. Each of lens two faces is part of a sphere and can be convex or concave. If a lens is thicker at the center than the edges, it is a convex or converging. Lens since parallel rays will be converged to meet at the focus. A lens which is thinner in the center than the edges is a concave or diverging lens. Since rays going through it, it will be spread out. And concave lens is also known as a diverging lens, and convex lens is known as a converging lens. Okay, this is about the lens. Lens and images. First of all, there are some diagram related to the lens. There is some parallel rays are coming from the infinity, and after passing through the lens, rays are converged and it focus at the principal axis. Okay. तो सामने देखो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा कि पैरेलल रेज आ रही है, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही है और आफ्टर कन्वर्जिंग थ्रू द लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे ये रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज द फोकस and distance from the focus and the pole is known as focal length. Light rays that enter a converging lens parallel to its axis bend to meet at a point called the focal point. The distance from the center of the lens to the focal point is called the focal length. The optical axis usually goes through the center of the lens. Okay. तो ये तो इसका रे डायग्राम है. अब देखो ये this is above diagram is related to the converging lens or convex lens. Parallel rays are coming from the infinity, and this is focus, and below diagram is related to the concave lens. Okay, and you know that this is the diverging lens, and it diverges the rays. Yes, sir. 1 minute. Okay, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो देखो, तो ये तो पिक्चर हो गया रिलेटेड टू द रेज डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. Yes, sir. ओके, अब देखो द इमेज फॉर्म बाय अ लेंस. देखो ये जो डायग्राम जो है दिस इज रिलेटेड टू द when object is inside the focus and pole. When object is inside the focus and pole, then it gives the virtual and enlarged image. ये तुमको दिख रहा है, दिस इज द मैग्नीफाइंग ग्लास. ये मैग्नीफाइंग ग्लास तुम्हें एक वर्चुअल इमेज देता है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज तभी मिलेगा जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस और पोल के बीच में होगा. ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन. दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनता है, बट इन दिस सिचुएशन इन दिस केस इट विल गिव द virtual image outside the focus. Okay, a lens can form a virtual image just as a mirror does. Rays from the same point on an object are bent by the lens so that they appear to come from a much larger object. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है. ये सामने जो पिक्चर जो शो किया गया है दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज देता है, बट इन दिस केस इट गिव द वर्चुअल इमेज. अब देखो, तो ये तो हो गया. दिस इज अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस. देखो ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और ये देखो ये तुमको एक रियल इमेज दे रहा है. आई थिंक स्क्रीन पर तुमको दिख रहा होगा. ये कोई एक रेज है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रहा है. एक दो रेज है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और एक उसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है और ये तुमको एक रियल इमेज दे रहा है. दिस इज गिवन द रियल इमेज.
A converging lens can also form a real image. In a real image, light rays from the object actually come back together. Okay, तो देखो ये रियल इमेज डायग्राम है, और इसके जस्ट पहले वाला जो था ये देखो ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज का केवल एक ही कंडीशन है। अब देखो अगला ड्राइंग रे डायग्राम। देखो ये तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रे डायग्राम इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस and whether the image is magnified or inverted. These three rays follow the rules for how light rays are bent by the lens. A light ray passing through the center of the lens is not deflected at all. देखो लेंस के सेंटर से अगर कोई रेज पास अगर कर रहा है तो वो डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। दूसरा, a light rays parallel to the axis passing through the far focal point B. Third, a light ray passing through the near focal point emerges parallel to the axis. ठीक है, तो ये देखो ये Yes, एक sir. रे डायग्राम दिया हुआ है। दिस आई थिंक ये सब तुमने Yes, sir. क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा, ये सब क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा। हाँ, When object is yes, sir. outside the center of curvature, 2f Yes, is the sir. center of curvature. ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है तो इमेज जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर होगा, ठीक है। ये डायग्राम में देखो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, लेकिन इमेज जो मिल रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर मिल रहा है, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f इज लोकेटेड बिहाइंड द लेंस बिटवीन f and 2f. इट इज अ रियल इन्वर्टेड इमेज which is smaller than the object itself. Okay, और ये स्मॉल इमेज दे रहा है, ठीक है। आई थिंक ये डायग्राम समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, No, sir. ठीक है। ओके, अब ये देखो अगला डायग्राम। when object is inside the center of curvature, when object is between focus and center of curvature. okay, तो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर है तो देखो इमेज जो मिल रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर मिल रहा है, ठीक है। और सेंटर ऑफ Yes, कर्वेचर sir. के बाहर जो इमेज जो मिल रहा है, दिस इज द इनलार्ज्ड इमेज, size of image is large. okay, the image formed when an object is placed between 2f and f is located beyond 2f behind the lens. It is a real inverted image larger than the object. okay, ये Yes, sir. हाँ ये देखो ये अभी जस्ट मैंने तुमको बताया था, दिस इज द एक्सेप्शन। ये देखो एक्सेप्शन है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। when object is between focus and pole, then image is formed outside the focus and this is the virtual image. this is the virtual image, ठीक है। याद रखना ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन वाला जो कंडीशन जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, Yes, ठीक sir. है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का Yes, ये sir. वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Hmm. अभी जब हम लोग टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप Object जब within पढ़ेंगे, F. हाँ जब हम लोग ऑब्जेक्ट जो सॉरी जब हम लोग टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जब पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, Hmm. तो वहां पे ये वाला डायग्राम का देखो यूज है, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, देन इमेज इज आउटसाइड द focus and backside the object, and this is the virtual image and large in size. okay, the image formed when an object is placed in front of f is located somewhere beyond f on the same side of the lens as the object. It is a virtual upright image which is larger than the object. okay, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल इमेज बनता है, लेकिन यही केवल एक ऐसा कंडीशन है जो तुमको वर्चुअल इमेज दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये देखो ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस ऑलवेज गिव द वर्चुअल इमेज, कॉन्केव लेंस ऑलवेज गिव द वर्चुअल इमेज। ओके, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, 2f के अंदर रखो, 2f के बाहर रखो, या फोकस के अंदर रखो, या फोकस के बाहर, कहीं पे भी रखो, ये हमेशा तुमको एक वर्चुअल इमेज ही देगा। आई थिंक डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखो ये रेस जो है डाइवर्ज हो रहा है, Yes, sir. और इस Yes, डाइवर्जिंग sir. रेस को जब हम पीछे की तरफ जब ड्रॉ कर रहे हैं तो एक स्मॉल Hmm. इमेज तुम्हें मिल रहा है एट द साइड ऑफ Yes, sir. ऑब्जेक्ट, है ना। तो जिस Yes, साइड sir. में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी सेम साइड में तुम्हें इमेज मिल रहा है, एंड दिस इज Image भी द दिख रहा स्मॉल है. इमेज ना। Hmm. तो कॉन्वेक्स Yes, लेंस sir. में तो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज लार्ज होता है, लेकिन कॉन्केव Yes, लेंस sir. में वर्चुअल इमेज स्मॉल होता है, ठीक है। तो Yes, कॉन्वेक्स sir. और कॉन्केव लेंस के वर्चुअल इमेज में यही फर्क है। एक बार फिर से हम रिपीट Hmm. कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। कॉन्वेक्स लेंस में Hmm. वर्चुअल इमेज लार्ज होता है, ठीक है,
लेकिन Yes, sir. कॉन्केव लेंस में वर्चुअल इमेज स्मॉल होता है। Small होता ठीक है. है, देखो अभी जब तुम्हें दिखा रही है, देखो अभी जस्ट मैंने तुम्हें दिखाया था, ये देखो कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज तुम्हें लार्ज मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे देखो, Hmm. यहाँ पे तुम्हें वर्चुअल इमेज स्मॉल मिल रहा है इन केस ऑफ कॉन्केव Yes, लेंस। sir. Okay, no matter where the Hmm. object is placed, the image will be on the same side as the object. The image is virtual, upright, it is smaller than the object with a concave lens. Okay, अब Yes, देखो, sir. दिस इज द साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पोल के लेफ्ट में डिस्टेंस नेगेटिव होता है और पोल के राइट में डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ओके, और एक्सिस के अबव हाइट पॉजिटिव होगा और एक्सिस के नीचे Yes, हाइट sir. जो होगा वो नेगेटिव होगा। ओके, आई थिंक Yes, इज sir. इट क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं Yes, होना sir. चाहिए साइन कन्वेंशन के बारे No, में। sir. ओके, No, no. अब देखो लेंस फार्मूला। देखो ये जो सामने जो फार्मूला है, इसी फार्मूले के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, दिस फार्मूला इज नोन एज अ Yes, sir. लेंस फार्मूला। आई Lens थिंक ये formula. फार्मूला तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। 1/f Yes, sir. इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। Minus 1 upon u. ओके, ये देखो ये इसका रे डायग्राम है। इस रे डायग्राम के Hmm. हेल्प से हम लोग को लेंस फार्मूला आज प्रूव करना है। ठीक है, कैसे Yes, प्रूव sir. करना है अभी हम डिस्कस करते हैं। ये देखो डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला और द कॉन्वेक्स लेंस। और हाँ एक चीज और, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो चाहे कोई भी लेंस हो, ठीक है, लेंस फार्मूला जो होगा Hmm. सबके लिए सेम होगा। ठीक है, Yes, चाहे sir. रियल इमेज हो चाहे वर्चुअल इमेज हो चाहे कोई भी इमेज हो, लेंस फार्मूला सबके लिए सेम होगा। ये Hmm. देखो ये प्रूव किया गया। अब इसको हम तुमको एक बार हम लिख के हम समझा देते हैं इस फॉर्मूले को कैसे प्रूव किया गया। खैर ये तो मैग्निफिकेशन इसके बाद में देखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू द लेंस फार्मूला। ओके, एक मिनट। हाँ, लेंस फार्मूला। Lens for First of all, I am Mala. drawing the diagram of convex lens and I am derive this formula for a real image. This is the convex lens and suppose this is the principal axis. This is known as a principal axis. Okay, इसको principal axis बोला जाता है। Principal axis is passing through the pole and the center of curvature. ठीक है, अब देखो, we consider an object AB. Suppose this is the object AB. ये ऑब्जेक्ट AB है and suppose this object is between focus and center of curvature. Okay, this object is in between focus and center of curvature, and you know that if object is in inside the center of curvature, then it gives the image outside the center of curvature. Okay, Yes, sir. तो ये जो इमेज जो देगा ये सेंटर ऑफ Hmm. कर्वेचर के बाहर देगा। फर्स्ट रेस Yes, sir. पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो ये जो रे जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। Yes, sir. सॉरी, हाँ ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है and second rays is passing through the center of lens. Second rays is passing through the center of lens like this. And you know that convex lens is a converging lens and it converts the light rays. ये converging lens है तो ये light rays को converge करेगा। ये देखो this is converged at this point.
this ray is passing through the optical center. Okay, and you know that object is inside the center of curvature, then image is formed outside the center of curvature. Okay, ये देखो, this is ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 है। इमेज जो बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा इमेज है एंड दिस इज द इमेज A डैश B डैश। ओके, और एंड यू नो दैट दिस पॉइंट इज फोकस। ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट इज नोन एज अ फोकस, प्रिंसिपल फोकस, and distance between the pole and principal focus is called focal length. Principal focus और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा u और इमेज का डिस्टेंस होगा v। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो, तो हमें लेंस फार्मूला प्रूव करना है और सपोज लेंस के अंदर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं O, और देखो O और P जो है दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज है। ठीक है, O और P अप्रोक्सीमेटली सेम है और ये सपोज ये वर्टिकल एक्सिस है इनसाइड द लेंस। ठीक है, ये देखो, और इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, सपोज इस पॉइंट को मान लेते हैं M। ओके, अब देखो, तो अब हमें लेंस फार्मूला यहाँ पे डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द टू ट्रायंगल्स ABP and A dash B dash P, या फ्रॉम triangle ABO and triangle A dash B dash O। ओके, A dash B dash O। अब देखो, ये बताओ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल तुम्हें पता है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस ना। तो बताओ, Similarity. हाँ, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th में तुमने पढ़ा होगा। रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बेस। तो परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा? AB अपॉन A डैश B डैश, and this is equal to the ratio of base BP upon B dash P। okay, BP upon B dash P। okay, अब देखो ये हो गया। अब ये काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो BP तुम्हारा U के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो AB अपॉन A डैश B डैश जो होगा, BP की जगह क्या पुट करेंगे? माइनस U, और B डैश P की जगह पुट करेंगे V। ओके, एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर क्या है? 1। ओके, आई थिंक ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, Yes, sir. अब अगला ट्रायंगल लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल OMF शायद तुम्हें दिख रहा होगा, एंड ट्रायंगल A dash B dash F, Yes, sir. A dash B dash F। okay, again we are applying the Yes, sir. similarity of triangle, then from similarity of triangle ratio of perpendicular होगा OM upon A dash B dash, Yes, sir. and this is equal to the ratio of base OF upon FB dash। okay, अब देखो, Yes, sir. तो बताओ ये जो OM है, OM को जरा ध्यान से देखो, ये AB के इक्वल है, AB के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। okay, Yes, sir. then we putting AB in place of OM, therefore AB upon A dash B dash
and this is equal to OF upon FB dash. Okay, suppose Yes, this sir. is the equation number, ये equation number 2 है. Again we are comparing the equation number 1 and equation number 2. Comparing Yes, sir. equation 1 and equation 2. Okay, दोनों equation को compare करेंगे. तो therefore Yes, sir. तो जरा ये बताओ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. ठीक है, तो माइनस यू अपॉन Yes, sir. वी इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश. अब तुम जरा ध्यान से देखो, ये जो ओ एफ जो है, ये जो ओ एफ है ये एफ के इक्वल है. ये ओ एफ जो है ये एफ के इक्वल है. ठीक है, और ये जो एफ बी डैश जो है, Yes, sir. ये एफ बी डैश जो होगा दिस इज ओ बी डैश माइनस ओ एफ ना, ओ बी डैश माइनस ओ Yes, एफ. sir. और देखो ओ बी डैश किसके Hmm. इक्वल है, ओ बी डैश तुम्हारा वी के इक्वल है और ओ एफ जो है वो एफ के इक्वल है. Hmm. तो ये क्या होगा, वी माइनस एफ होगा. ठीक है, Yes, sir. तो देयरफॉर Hmm. माइनस यू अपॉन वी एंड दिस इज इक्वल टू ओ एफ के जगह पुट कर देंगे एफ और एफ बी डैश के जगह वी माइनस एफ. ओके, अब देखो, Hmm. तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड. तो देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस यू वी प्लस यू एफ एंड दिस इज इक्वल टू द वी एफ. ओके, Yes, या sir. माइनस यू वी is equal to VF minus UF. Okay, dividing both side by UVF. Yes, sir. Dividing both side by UVF. Okay, तो सपोज Yes, मान लो sir. हम इसको हम UVF से हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो बताओ UVF से Hmm. डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस UV डिवाइडेड बाई UVF and this is equal to VF divided by UVF minus UF डिवाइडेड बाई UVF. ठीक है, और इसमें देखो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो कैंसिल हो रहे हैं. ये देखो UV जो है UV से कैंसिल, VF VF से कैंसिल, UF UF से कैंसिल. तो देयरफॉर ये तुमको मिल गया माइनस वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी. ओके, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ नेगेटिव साइन, दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, ये देखो Yes, sir. multiplying both side with negative sign, multiplying both side with negative sign. तो बताओ नेगेटिव साइन से अगर इनटू करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाई एफ क्या हो जाएगा, प्लस वन बाई एफ हो जाएगा. एंड Yes, sir. और बताओ माइनस वन अपॉन बी क्या हो जाएगा, प्लस वन अपॉन बी हो जाएगा और वन अपॉन यू माइनस हो जाएगा ना. देन वन अपॉन Yes, sir. एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू. ओके, एंड दिस Yes, sir. इज द लेंस फार्मूला. ओके, यही तुम्हें प्रूफ करना था, Yes, sir. यही लेंस फार्मूला है. ठीक है, आगे समझ में, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. Yes, sir. ओके, No, sir. तो यही था, तुम्हें एक सिंपल एक रे डायग्राम बनाना है और रे डायग्राम बनाने के बाद फिर ये पूरा तुम्हें प्रूव करना है. ओके, अब देखो अगला जो है मैग्निफिकेशन. देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये देखो मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस. द Yes, मैग्निफिकेशन sir. of a lens is the ratio of the height of image to the height of the object. Okay, magnification का मतलब होता है height of image upon height of object and it is represented by m. इसको small m से represent किया जाता है. ठीक है, this number is a Yes, sir. dimensionless ratio and does not have any units. magnification को कोई भी यूनिट नहीं होता है. ठीक है, ओके, Hmm. तो
अगला टॉपिक जो है, दिस इज रिलेटेड टू द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन height of object. Okay, Yes, sir. height of Yes, sir. image upon height of object. Okay, अब देखो, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 माइनस h2 अपॉन h1। देखो h2 को हम लोग माइनस में ले रहे हैं, क्यों माइनस में ले रहे हैं? क्योंकि इमेज की हाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ये देखो, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में ये तुम्हारा h2 जो है ये नेगेटिव होगा और ये जो h1 जो है ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि h2 प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और h1 प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ओके, Yes, तो ये sir. चीज समझ में आ गई ना, h2 को नेगेटिव लेंगे और h1 को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके, तो m इज इक्वल टू माइनस h2 अपॉन h1। और हाँ, एक चीज और, मैग्निफिकेशन, खैर अच्छा इसको अभी हम बाद में बताएंगे। अब देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें दो अलग अलग लेंस के लिए पढ़ना है। ठीक है, पहला है कॉन्वेक्स Yes, लेंस, sir. और दूसरा है कॉनकेव लेंस। एक मिनट, ये देखो, तो देखो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है पावर ऑफ लेंस के बारे में। ओके, इसमें तो सोचते मैंने पढ़ लिया, चलो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग द मैग्निफिकेशन फॉर अ डिफरेंट लेंस। अब देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है, सपोज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस, फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। अब बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में भी तुमको पता है कि दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है फॉर रियल इमेज, सबसे पहला कंडीशन है फॉर रियल इमेज। Yes, sir. ठीक है, फॉर रियल इमेज। ओके, ये देखो स्क्रीन में ऊपर देखो, ये स्क्रीन में ऊपर तुम्हें दिख रहा है, Yes, sir. ये जो है दिस इज रियल इमेज, रियल इन्वर्टेड एंड द मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड द मैग्नीफाइड। ओके, तो अब देखो, तो रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और मैग्नीफाइड भी है। और इसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो होगा, m इज इक्वल टू माइनस h2 अपॉन h1, माइनस h2 अपॉन h1। and in this case magnification of a lens for a real image, magnification of lens is negative, magnification of lens is negative। Negative. ओके, आगे समझ में? तो रियल इमेज के Yes, लिए sir. जो m का वैल्यू जो होगा वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. अब ये देखो, तुमको यहाँ दो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी ओ और दूसरा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। तो अब इस ट्रायंगल में तुम्हें रेशियो लेना है। अभी मैंने तुम्हें बताया था, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। तो जरा ये बताओ, मैंने बताया था अभी तुम्हें ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ओके, और Yes, बताओ sir. बेस का रेशियो क्या है, बीपी अपॉन पीवी डैश ना। We. Yes, sir. तो अब देखो, दिस इज बीपी अपॉन बी डैश पी। ओके, वैल्यू पुट कर दो। बताओ, तुम्हें पता है कि ए बी किसके इक्वल था, ए बी h1 था ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, Yes, sir. और ए डैश बी डैश क्या था, हाइट ऑफ इमेज माइनस। अब बताओ बीपी, बीपी किसके इक्वल है, ये देखो बीपी तुम्हारा यू के इक्वल है ना, बीपी यू के इक्वल है। ओके, UK. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे माइनस यू।
क्यों माइनस में ले रहे हैं? क्योंकि पोल के लेफ्ट में है, बीपी जो है वो पोल के लेफ्ट में है, और ये जो Yes, बी sir. डैश पी जो है, बी डैश पी जो होगा दिस इज इक्वल टू प्लस वी, ओके, Yes, sir. तो माइनस यू अपॉन वी। तो बताओ ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये देखो ये माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर Yes, sir. मैग्निफिकेशन सॉरी H1 अपॉन H2 है ना, तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देंगे तो H2 अपॉन H1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू V अपॉन U, ओके, Yes, sir. एंड दिस इज द कंडीशन H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U। तो इट मीन्स ये जो मैंने Yes, फॉर्मूला sir. जो लिखा है, ये मैग्निफिकेशन का, ये देखो ये जो मैंने फॉर्मूला जो लिखा है माइनस H2 अपॉन H1, इसके जगह हम लोग पुट कर Yes, sir. सकते हैं M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, ओके, ये फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं, Yes, sir. M इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U, ठीक है, आगे समझ में? ओके, Yes, तो sir. देखो ये तो था, दिस इज इन केस ऑफ रियल इमेज, लेकिन तुम्हें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज भी बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में Yes, sir. वर्चुअल इमेज भी बनता है। अब देखो तो वर्चुअल इमेज के लिए कैसे निकालेंगे, फॉर वर्चुअल इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस, एक मिनट तुमको हम स्क्रीन शो कर रहे हैं, ये देखो अभी मैंने तुमको एक पिक्चर शो किया था वर्चुअल इमेज के लिए, ये देखो, आई थिंक स्क्रीन पे Yes, तुम्हें sir. दिख रहा होगा ना, Hmm. इस पे हम लिख नहीं Yes, पा sir. रहे, इसी में हम लिख के समझा देते। तो देखो ये जो डायग्राम जो है, इसी के हेल्प से हमें मैग्निफिकेशन निकालना है। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, Yes, sir. ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है और इमेज की भी हाइट पॉजिटिव है, ठीक है, Yes, H1 भी sir. पॉजिटिव है और H2 भी पॉजिटिव है, ठीक है, और जरा ये Yes, sir. बताओ यहाँ पे U नेगेटिव होगा और V भी नेगेटिव होगा ना, U भी नेगेटिव होगा और V भी नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि दोनों पोल के लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों पोल के लेफ्ट में है, इसलिए U और V दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है, और H1 H2 पॉजिटिव होगा, ठीक है, आगे समझ में? Yes, sir. ओके, अब देखो तो वर्चुअल इमेज के लिए निकालना है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है M इज इक्वल टू, तो ये H2 प्लस मिलेंगे और H1 को भी प्लस मिलेंगे, ठीक है, H1 और H2 दोनों को Yes, प्लस sir. मिलेंगे, M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1 हो गया, एंड मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, ओके। Yes, sir. अब देखो तो मैंने जो डायग्राम दिखाया था, उस डायग्राम में अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो अगर निकालेंगे, तो बताओ परपेंडिकुलर का रेशियो क्या आएगा, H2 अपॉन H1, और बताओ बेस का रेशियो क्या आएगा, बेस का रेशियो आएगा माइनस V अपॉन माइनस U ना, Yes, sir. V और U दोनों नेगेटिव था ना, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, Yes, sir. तो बताओ H2 अपॉन H1 एंड दिस इज इक्वल टू V अपॉन U, ओके, एंड U. दिस इज द कंडीशन। तो देखो ये तुम्हारा जो है वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है, अब देखो तो ये तो था कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखो Yes, sir. कॉन्वेक्स लेंस का मैंने दोनों कंडीशन तुम्हें बता दिया, पहला रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। अब आता है कॉनकेव लेंस, दूसरा तुम्हारा है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, और देखो इसका भी डायग्राम मैंने अभी तुमको शो किया था। तुम्हें पता है कि कॉनकेव लेंस में तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है ना, Yes, sir. ये देखो मैंने तुम्हें दिखाया था, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो ये कॉनकेव लेंस और है, इमेज स्मॉल बनती है। हाँ स्मॉल इमेज है, हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉल। बताओ यहाँ पे H1 H2 दोनों पॉजिटिव होगा ना, H1 H2 दोनों पॉजिटिव होगा, Yes, sir. और U और V नेगेटिव होगा ना, U और V नेगेटिव होगा,
और H1 H2 पॉजिटिव होगा। मतलब जो कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, वही सेम कंडीशन है फॉर द वर्चुअल इमेज ऑफ कॉन्केव लेंस। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों के वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो इस साइड बन रहा है। इमेज तो दोनों में तो सेम साइड में ही बनता है, दोनों का इमेज लेफ्ट में ही बन रहा है। कॉन्वेक्स में भी अच्छा, लेफ्ट में बन रहा है, कॉन्केव में भी लेफ्ट में बन छोटा रहा बन रहा है। है। हाँ, हाँ छोटा बन रहा है। हाँ, कॉन्केव लेंस में स्मॉल इमेज बनता है और कॉन्वेक्स लेंस में लार्ज हम्म, इमेज बनता है। ठीक है, यही लार्ज इमेज डिफरेंस है। बनता है। अब देखो, यस सर। तो कॉन्केव लेंस, तो अब देखो, तो इसका हम लोग सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन जो आएगा m इज इक्वल टू H2 अपॉन H1। ठीक है, और H1 H2 दोनों पॉजिटिव होगा, H1 H2 दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस मैग्निफिकेशन सर। ऑफ लेंस इज पॉजिटिव। ओके, यस सर। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव। बताओ H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1 इज दिस इज इक्वल टू माइनस V अपॉन माइनस U ना। V और U दोनों माइनस में था ना, माइनस माइनस कैंसिल। तो बताओ H2 अपॉन H1 जो होगा, दिस इज इक्वल टू V अपॉन U। ओके, आगे समझ में। एंड दिस इज द यस सर। कंडीशन ऑफ मैग्निफिकेशन in case of virtual image of concave lens। ओके, ठीक है, तो यस एक बार सर। इसको देख लो, समझ लो। थोड़ा हमको 5 मिनट का समय देना, बस हम 5 मिनट में आ रहे हैं। यस सर। Question number 9 is that an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of a concave lens of focal length यस सर। 21 centimeter. Describe the हम्म। image produced by the lens. What happens if the object is moved further from the lens? यस This is सर। the question number यस सर। 9 of NCERT. क्वेश्चन नंबर 9 है। इधर मतलब हाँ बताओ, किस चीज की हाइट दी हुई है? ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की। हाइट है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट होता है h, तो H1 कितना दिया हुआ है? हम्म। 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 फिर और आगे क्या सेंटीमीटर दिया हुआ है? इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस। ओके, तो अवे बताओ फ्रॉम ये द। क्या दिया हुआ है? व्हाट इज हाँ, दिस? एफ। यू दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट का नहीं डिस्टेंस सॉरी, दिया यू हुआ है। है। यू। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? हाउ मच? हाँ हाँ हाँ, यू। एफ तो दिया था 14 21 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, और तुम्हें 14 पता है कि यू सेंटीमीटर। को माइनस में लेते हैं, तो ये माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, हम्म। और क्या दिया हुआ है? हाँ, -14 एफ सेंटीमीटर। दिया हुआ है। ओके, एफ। एफ कितना दिया हुआ है? हाउ मच? 21। और बताओ, इसको प्लस में 21। लेंगे कि माइनस में लेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि माइनस कॉन्केव में लेंस है। लेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, हम्म। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तुम्हें इमेज के बारे में डिस्क्राइब करना है, मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या है और इमेज की हाइट क्या है। ओके, ये दो चीज तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो निकालो। तो सबसे पहले यस तुम्हें सर। वी निकालना है। लेंस फॉर्मूला तुम्हें पता है? हाँ, वी दिया हुआ H2 हम्म, निकल जाएगा। H1 दिया हुआ 3। वी है -8.4। यू है -14। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। H2 equals to 8.4 into 3। 1.8 आया। 1.8। ओके, हाँ सही है, बिल्कुल सही। हम्म। वी तुम्हारा है 8.4 सेंटीमीटर, और हाँ माइनस में आएगा। ठीक है, -8.4 और सेंटीमीटर। ये तुम्हें फॉर्मूला पता है कि H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U होता है। तो H2 अपॉन H1 कितना दिया हुआ था? H1 3 दिया हुआ था। ओके, हम्म। V कितना है? -8.4, और U यस कितना था? सर। -14। और इसको सॉल्व करेंगे
यस सर। तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, h2 मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, तो h2 कितना आएगा, हाउ मच, -8, यस सर। 1.8, ओके, 1.8 1.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, ओके करेक्ट, यही है। तो आई थिंक समझ में आ गया, लेंस फॉर्मूला पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लग जाए ना, ओके। तो इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको यस तुम सर। घर पे खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को तुम, हाँ हाँ, इसको घर पे तुम एक बार बीम खुद ऑफ से ट्राई लाइट। करना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े फिर, ओके। ओके सर। तो देखो लेंस में मैंने लगभग यस तुम्हें सर। सारा टॉपिक मैंने बता दिया है। आई थिंक हमें नहीं लगता है कि लेंस में कुछ कोई ऐसा टॉपिक अब बच रहा है। तो देखो इसमें लगभग मैंने सारा टॉपिक बता दिया। हाँ, एक यस सर। छोटा सा एक और टॉपिक बच रहा है, पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, P is equal to 1 by F, or F is equal to 1 upon P. The SI unit of power is diopter. Diopter is the one diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. The power of a convex lens is positive and the power of a concave lens is negative. Okay. Convex lens का सर पावर ऑफ लेंस के हम्म, बाद ये वो सब तो जो अभी है बाद में है ना, टेलीस्कोप, अभी तो हम माइक्रोस्कोप, लेंस ये वाला पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं। लेंस के बाद अभी हम प्रिज्म पढ़ाएंगे, प्रिज्म अच्छा के बाद लेंस जो वाला है पोर्शन ऑप्टिकल नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। चैप्टर्स। रेनबो हट हाँ गया हाँ, सिलेबस से, ठीक है, रेनबो वाला जो है। रेनबो सिलेबस से हट गया। हाँ, रेनबो हम्म, वाला हट गया। वो वही नहीं आ हाँ, रहा, तभी वो इसको 2-3 साल से हेल्पफुल नहीं आ रहा है। बोले थे। हाँ हाँ आई भी हट हाँ गया है, हाँ। और ठीक है, ये आई। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब हट गया है। अच्छा। ओके, हाँ 10th में रहा होगा, 10th में था ये ठीक सब। है। तो अभी लेंस चल रहा है, लेंस के बाद फिर हम तुमको पढ़ाएंगे प्रिज्म, यस सर। और प्रिज्म के बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, तो ये सबसे पहले देखो पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला यस देख सर। लो, P इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, ये फॉर्मूला पता है ना तुम्हें, क्लास 10 में पढ़ी होगी। ओके, और लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, यस तो कॉन्वेक्स लेंस सर। का पावर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ अ लेंस, अगला टॉपिक है ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस इज यस सर। रिप्रेजेंटेड बाय P, the ability of the lens to converge or diverge the rays. The ability of the lens to converge or diverge the rays. To converge or diverge the rays, okay, are called power of a lens. यस सर। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1 बाई एफ, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ। और ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हैं जब F तुमको किस में दिया हुआ है, F तुमको मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। या अगर सपोज अगर F अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई एफ, व्हेन यस F सर। इज इन सेंटीमीटर। ओके, F इज इन सेंटीमीटर, आगे समझ में। और अगर सपोज मान लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर दिया हुआ है, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर दिया हुआ है तो पावर का फॉर्मूला जो होगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और दो से ज्यादा लेंस अगर तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो P1 P2 को पॉजिटिव लेंगे, और कॉन्केव लेंस अगर है तो P1 P2 को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यस सर। उल्टा बोल दे, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव है तो कॉन्केव लेंस में, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स है तो हाँ नेगेटिव। कॉन्केव में नेगेटिव होता है, ठीक है, आगे समझ में। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। ओके, अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ
ना वो तो मैंने बता दिया ना, नहीं वो तो मैंने बता दिया, पिछले क्लास में मैंने Combination बताया of था। thin lenses in contact, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज में पिछले क्लास में मैंने बताया ये था। भी हट गया। हाँ 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 हाँ, मैंने बताया था ना, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। Of thin lenses in contact, ये वो हो वाला गया। जो NCERT वाला है, ये हो गया है। अब अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हाँ हाँ हाँ, एंड कॉन्वेक्स F2 मिरर। हाँ। ठीक है, हाँ तो देख, नहीं वो सब नहीं है। प्रिज्म अभी मैंने बोला ना, प्रिज्म अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। प्रिज्म जो है वो सर एक सेकेंड, डिस्पर्शन बाय नहीं अ वो नहीं प्रिज्म आएगा। है कि नहीं है? प्रिज्म अभी हम स्टार्ट नहीं किए, प्रिज्म अभी इसके बाद है। ये नहीं आएगा। ठीक है, अभी लेंस चल रहा है। ठीक, तो देखो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्राइंग द हाँ कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस यस सर। एंड सपोज प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, एंड सपोज वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट ए बी। ये देखो ये ऑब्जेक्ट ए बी है। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। अब अगर मान लो सपोज यहाँ से रेज ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये रेज ट्रेवल कर रहा है, ये देखो, एंड अनदर रेज इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ये देखो ये सेकंड रेज है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब देखो, यू नो दैट दिस इज द कन्वर्जिंग लेंस। तो ये रेज को कन्वर्ज करेगा। एक मिनट बैकग्राउंड यस का सर। हो गया। हमें यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है, सॉरी। हाँ हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडरिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ। सपोज मान लो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, और यहाँ से रेस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये देखो दिस इज द रेस विच इज कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, अब देखो, यू नो दैट कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो ये रेस को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये देखो ये रेस कन्वर्ज हो रहा है। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट का इमेज का पोजीशन मिल गया, एंड यू नो दैट दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज आई। ओके, ये इमेज का पोजीशन है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लो कितना है, u, और बताओ इमेज का पोजीशन तुम्हें क्या मिल जाएगा, दिस इज v। ठीक है, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगेन वी आर कंसिडरिंग द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब सपोज मान लो हम कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। ठीक है, तो जरा ये बताओ कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कॉन्वेक्स मिरर, आई एम आस्किंग अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, डाइवर्जिंग मिरर। ओके, करेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर इज द डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो ये रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, अच्छा मिरर ये जो है इस रेस को क्या करेगा, इस रेस को तो डाइवर्ज कर देगा ना, डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज करेगा। तो जिसके चलते इमेज का पोजीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इमेज का पोजीशन चेंज हो जाएगा ना। तो मान लो सपोज इमेज का पोजीशन तुमको कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आई डैश। ठीक है, इमेज का पोजीशन क्या मिल गया, आई डैश। अब हमें क्या करना है कि इस मिरर को एडजस्ट करना है। ठीक है, इस मिरर को एडजस्ट करना है और ऐसे पोजीशन पे एडजस्ट करना है ताकि इमेज का पोजीशन सेम आना चाहिए। मतलब जो इमेज का पोजीशन पहला था
वही सेम पोजीशन हमको लाना है, ठीक है। मतलब पहले इमेज का पोजीशन क्या था, आई था ना, पहले इमेज का पोजीशन आई था, तो हमें मिरर को एडजस्ट करके उसी सेम पोजीशन आई पे वापस लाना है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि ये जैसे लेंस का पोजीशन क्या Yes, है sir. P, और ये मिरर का Y पोजीशन dash. क्या है P डैश। ये मिरर का पोजीशन क्या है P डैश, ओके। और Yes, जब sir. इस पोजीशन पे जब हम ला रहे हैं मिरर को जब हम P डैश पे जब हम ला रहे हैं, तो इमेज का जो इनिशियल पोजीशन जो था आई, वो तुमको सेम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस कंडीशन में क्या होगा, आई जो होगा वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है। ये जो इमेज का पोजीशन आई जो है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, ठीक है। तो बताओ, द पोल ऑफ द मिरर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस क्या होता है, आर। ये तो तुम्हें पता है ना, ये आर के इक्वल होगा। और जरा ये बताओ ये डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस Yes, तो sir. v, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालना है, ठीक है। तो बताओ, फोकल लेंथ ऑफ Yes, मिरर sir. निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, शायद तुमने पढ़ा होगा, हाँ. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। लेंथ कैसे निकालते हैं, हाँ Yes, sir. नहीं नहीं, इसे तुमने पढ़ा होगा। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर बाई होता है ना। Yes, sir. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला F इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, ठीक है। आर बाई टू होता है, ठीक है, So हाँ। focal length of convex तो mirror. देखो ये सबसे पहले हमें आर निकालना होगा। Convex my plus तो चला आर गया. निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 by. रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो टोटल डिस्टेंस हमको जो पीसी दिया हुआ है, इसमें से पीपी माइनस कर देंगे, R/2. ठीक है। पीसी में से पीपी डैश को माइनस कर देंगे। पीसी किसके इक्वल है, और Yes, sir. पीपी डैश क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। हम्म. इसको माइनस कर देंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, और आर की वैल्यू पुट करेंगे एफ मिल जाएगा। एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। Yes, sir. आगे समझ में। हम्म. तो ये तुम लोग का प्रैक्टिकल है, ये तुम लोग का Yes, sir. प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को अरेंज करके इमेज का पोजीशन निकालते हैं V, फिर Yes, sir. मिरर को एडजस्ट किया जाता है। मिरर को जब एडजस्ट करते हैं तो इमेज का पोजीशन चेंज होता है। तो अब मिरर को हमें एडजस्ट करना पड़ता है Yes, sir. इमेज को सेम पोजीशन आई पे लाने के लिए। और जो अब सेम पोजीशन जो मिलेगा वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, ठीक है। मतलब आई को जब हम मिरर को जब हम एडजस्ट करेंगे तो वो जो आई जो आएगा वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना होगा कि मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या करेंगे कि पीसी में से पीपी sir. डैश को माइनस कर देंगे, आर निकल जाएगा, और जब आर निकल जाएगा तो आर बाई टू करेंगे तो फोकल लेंथ Yes, आ sir. जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द combination of convex lens and convex mirror to Yes, sir. find out the focal length of convex mirror, okay। I think समझ में आ गया, निकल जाएगा ना, ओके। तो देखो ये लेंस का लास्ट टॉपिक था, मैंने लेंस का सारा टॉपिक मैंने बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे अब हम लोग Yes, को sir. प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट